Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Paragraph. So let's start with the set number 23 of this particular playlist. Before that, an important update. We shall be starting two batches this month. CAT 25-26 offline batch is scheduled to start from 15th October and an online batch is also there which we have scheduled to start from 16th October. For more details, you can contact at the given number. So this particular set I've taken from previous year's SimCats and the set is on arrangement. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So let's start with the set. Balaji Manpower Solution BMS supplies servants, male or female, to do the household work in different housing societies in Mangalore. BMS charges 1 month salary of the servant from its client as its service charges. The salary paid to the servant is rupees 1000 per month for 1 hour daily, 2000 per month for 2 hour daily, and so on. Further, the number of hours for which each servant works every day is a natural number. 5 clients of BMS named Pushpa, Jaya, Gopal, Rajesh, and Abhishek employ Reena, Meena, Shamlal, Ramlal, and Pannalal in no particular order in their household work. सो बेसिकली एक अरेंजमेंट का यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम दिया हुआ है जहाँ पे वी आर गिवन विद द 5 क्लाइंट्स एंड 5 एम्प्लॉय का नाम एंड वो 5 अलग अलग दिन काम कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हमें उनका जो सैलरी है वो निकालना है. एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी फॉर 1 मंथ फॉर 1 आवर इज 1000, फॉर 2 आवर इज 2000 एंड सो ऑन. तो मतलब कोई अगर बंदा है जो 5 घंटे के लिए काम कर रहा है पूरे 1 महीने के लिए तो ही और शी विल बी पेड 5000 एंड सो ऑन. ठीक है. Following points are known. No female servant works in the house of a female client of a BMS. ठीक है. कोई भी female worker is not working with a female client. ठीक है. Gopal employs Shamlal and pays highest service charges to BMS. Reena gets the least among the 5 servants. Meena works for 6 hours in Abhishek House in Jal Mandir Housing Society. So अभी यहाँ पे housing society का भी एक element आ गया. So अभी यहाँ पे notice करो हमारे पास चार पैरामीटर्स है. मतलब क्लाइंट का नाम, एम्प्लॉय का नाम, हाउसिंग सोसाइटी का नाम एंड नंबर ऑफ डेज जिसपे काम करें. अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सैलरी आल्सो. ठीक है. सो मीना वर्क फॉर 6 आवर्स इन अभिषेक हाउस इन जलमंदिर हाउसिंग सोसाइटी. Pushpa pays more service charges to BMS than Jaya pays. The highest and the lowest salary paid to the highest and lowest salary paid servant do not work in Siddhivinayak Housing Society and Shubh Chintak Housing Society. Pannalal salary is more than that of the exactly 2 other servants. No 2 servants get equal salary and the minimum of working hours per day of a servant is 3 and the maximum number of working hours per day servant is 8. ठीक है. ये एक पॉइंट है जो अपने काम का है. मतलब मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 8 है. यानी कि जो अगर ध्यान हो तो मैं जब पढ़ते आता कि एक कोई कैरेक्टर था जिसने सबसे कम सैलरी विड्रॉ की है तो उसकी 3000 रही होगी और एक था जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ हुई है तो वो 8000 होगा. और जो बाकी हैं वो क्या हो सकते हैं 4, 5, 6, 7 इनमें से कुछ एक हो सकता है. इन गिवन में से कुछ अपने को एक मिल सकते हैं. ठीक है. थोड़ा और पढ़ लेते हैं. No 2 servant gets the equal amount salary and the minimum number of working per day is 3 and the maximum number of working hour per day is 4. Star and Raj Vaibhav are 2 of the 5 housing society. तो पांचों हाउसिंग सोसाइटी का भी नाम बता दिया. ऊपर एक जल मंदिर करके बताया था, फिर सिद्धिविनायक था, फिर शुभ चिंतक था, फिर स्टार एंड राज वैभव. ये पांचों. Among the clients BMS, Gopal, Rajesh and Abhishek are male. अच्छा, जो client हैं जितने ये हैं गोपाल मेल है, राजेश भी मेल है एंड अभिषेक आपका मेल है एंड बाकी जितने हैं वो फीमेल है. यानी कि अच्छा बाकी जितने हैं वो लोग फीमेल है. यानी कि पुष्पा और जया जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल होने वाली हैं. ठीक है. यानी कि मैंने इनको सर्कल में कर दिया. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हमेशा बॉक्सेस की हेल्प लेते हैं टू रिप्रेजेंट मेल एंड सर्कल्स का हेल्प लेते हैं टू रिप्रेजेंट फीमेल. अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ रीना, मीना आर फीमेल एंड वाइल श्यामलाल, पन्नालाल, रामलाल आर मेल्स. ठीक है. रीना फीमेल है, मीना भी फीमेल है और बाकी जितने हैं वो लोग बाकी लोग मेल हैं. ठीक है. डोंट गो बाय द नेम. मतलब ये सब बहुत खराब आइडिया होता है कि आप नाम पे जज करें कि वो जेंडर क्या होने वाला है. ठीक है. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या ये यूनिक बनने वाला है कि नहीं बनने वाला. What is the name of the employee working in Jaya society? In which society does Shamlal works? How much salary does ये? What is the difference between? ठीक है. So basically एक standard arrangement का सेट है. ठीक है. उसमें 5 एलिमेंट्स अपने को पता चल चुके हैं. अब उसी 5 एलिमेंट्स को अपने को यहाँ पे एक बॉक्स में फिल करना होगा. So for that I have created a small box and उस पे मैं सारी चीजों को भरता जाऊंगा.
एक एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे एंड ऑब्वियसली चीजें कंस्ट्रक्ट होती जाएंगी और वो आपको पूरा अरेंजमेंट आपका शेप अप होकर दिख जाएगा। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। नो फीमेल सर्वेंट वर्क्स इन द हाउस ऑफ अ फीमेल क्लाइंट, अभी ये पॉइंट तो यूज नहीं आएगा। गोपाल एम्प्लॉयज श्यामलाज एंड पेज हाईएस्ट सर्विस टू द पीएमएस। ठीक है, तो गोपाल ले लेते हैं यहाँ पे। गोपाल कौन है, कोई मेल है एंड गोपाल ने किसको एम्प्लॉय करा, श्यामलाल को करा, यानी कि श्यामलाल आ गए यहाँ पे, जो कि अगेन एक मेल है। ठीक है, तो गोपाल एम्प्लॉय श्यामलाल एंड पेज द हाईएस्ट सर्विस चार्जेस टू बीएमएस। हाईएस्ट सर्विस चार्जेस तभी रहेंगे जब वो 8,000 रुपए पे किया होगा, यानी कि इसने 8,000 रुपए लिए हैं, यानी कि इसके नंबर ऑफ डेज जो रहे होंगे, मतलब नंबर ऑफ आवर्स जो काम करने के रहे होंगे वो 8 रहे होंगे। ठीक है, रीना गेट्स द लीस्ट सैलरी अमंग द 5 सर्वेंट्स। कोई कैरेक्टर है रीना जिसको सबसे कम पैसा मिलता है एंड वो कौन है, वो फीमेल भी है। ठीक है, रीना कौन है, फीमेल है। अगर वो लीज है तो उसके 3 होना चाहिए और उसके 3,000 का अमाउंट होना चाहिए। अब अपने को क्या पता है, रीना क्या है, किसी मेल क्लाइंट के पास काम कर रही होगी, वो फीमेल क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे लिखा था पॉइंट नंबर एक जगह पे था, वी हैव रेड समवेयर। सिमिलरली ये रहा नो टू पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 में यही था ना कि कोई भी फीमेल एम्प्लॉय फीमेल क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रही। तो रीना के साथ प्रॉब्ली कौन काम कर रहा है, मतलब किसके यहाँ काम कर रही होगी, वो या तो राजेश होना चाहिए या तो अभिषेक होना चाहिए था। ठीक है, और पढ़ते हैं। मीना वर्क्स फॉर 6 आवर्स इन अभिषेक हाउस। चलो यहाँ पे अपने को अभिषेक का भी क्लियर हो गया, यानी कि अभिषेक के घर पे जो कि एक मेल है, वहां पे कौन काम कर रहा है, मीना काम कर रही है, मीना काम कर रही है। ठीक है, तो मीना और 6 आवर्स काम भी कर रही है, 6 आवर्स का कितना मिल गया, 6,000 मिल गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, और पूरा लाइन पढ़ते हैं। मीना वर्क्स फॉर 6 आवर्स इन अभिषेक हाउस एंड इन जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, इसकी जो सोसाइटी इसका नाम है जल मंदिर। ठीक है, अच्छा अभी मैंने ऊपर क्या बोला था कि रीना के साथ जो बंदा आने वाला है, यहाँ पे जो मेल आने वाला है, वो गोपाल नहीं होगा, वो अभिषेक नहीं होगा, तो वो क्या हो सकता है, वो गोपाल नहीं होगा, वो अभिषेक नहीं होगा, तो वो राजेश ही होने वाला है। तो यहाँ पे राजेश को भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल नहीं आ सकती और अपने पास 3 ही मेल थे, उसमें से एक गोपाल और अभिषेक हमने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया था, तो एक ही बचा राजेश। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पूरा यूज हो गया, पॉइंट नंबर 4 अब यूज हो गया। पुष्पा पेज मोर सर्विस चार्जेस टू बीएमएस देन जया। पुष्पा जो है वो ज्यादा पे कर रही है जया के कंपैरिजन में। अगर अभी ध्यान दो तो अपने को 6 भी मिल चुका है, नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 वैल्यूज 4, 5 और 7। तो पुष्पा अगर ज्यादा पे कर रही है तो वो क्या पे कर रही होगी, 7,000। तो उस केस में जया क्या पे कर रही होगी, या तो वो पे कर रही होगी 5,000 रुपए, या वो पे कर रही होगी 4,000 रुपए। और अगर पुष्पा 5,000 पे करती तो जया पे कर रही होगी 4,000 रुपए। पुष्पा पेज मोर देन जया, पेज मोर सर्विस चार्जेस टू बीएमएस देन जया। ठीक है, तो हमें ये भी एक पॉसिबिलिटी इस पॉइंट से निकल गई कि भाई ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज अपने को ना वो रेंज डिफाइंड है कि वो जो सैलरी का अमाउंट है वो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए था। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5 को भी मैंने यूज कर लिया। द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट सैलरी पेड टू दी डू नॉट वर्क इन सिद्धि विनायक सोसाइटी एंड शुभचिंतक सोसाइटी। यहाँ पे सिद्धि विनायक और शुभचिंतक नहीं आने वाला। ठीक है, सिद्धि विनायक और शुभचिंतक नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जो बचे हुए 2 सोसाइटीज हैं उनमें से कोई एक आने वाला है। ऑल्सो ये जो सिद्धि विनायक और शुभचिंतक है वो यहाँ पे आ सकता है, किस ऑर्डर में आएगा नहीं पता। ठीक है, अच्छा चलो पॉइंट नंबर 6 भी यूज हो गया। पन्नालाल सैलरी इज मोर देन एग्जैक्टली 2 ऑफ द अदर सर्वेंट। जो पन्नालाल की सैलरी है, ठीक है, पन्नालाल की जो सैलरी है वो किसी एग्जैक्टली 2 लोगों से ज्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, देखो यहाँ पे जो वैल्यूज थी 3, 8, 6, ये 3 वैल्यू तो जा चुकी हैं और वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को जा चुकी है। मतलब 8 इज विड्रॉन बाय श्यामलाल, 3 इज विड्रॉन बाय रीना एंड 6 इज विड्रॉन बाय मीना। ठीक है, अब पन्नालाल की जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो 7 बन सकती थी, 5 बन सकती थी, 4 बन सकती थी। ठीक है, अगर मैं 7 बनाता हूँ, ठीक है ऐसे समझ, पन्नालाल की अगर 7 बनाता हूँ तो 7 से कम क्या 2 वैल्यू मिल पाएंगी, पॉसिबल है नहीं। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान देना 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर मैं पन्नालाल को 7 बनाता हूँ, ठीक है, पन्नालाल से एग्जैक्टली 2 कम होना चाहिए। एक 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, एक 6 आ चुका है, 4 और 5 में से कोई एक तो आना ही आना, बिकॉज यहाँ पे ये वाले केस में ध्यान देना, क्योंकि अगर ये क्या नाम है इसका, पुष्पा किसी को 7 देती है तो जया को 5 और 4 में से किसी को देना पड़ेगा, एंड देयर हैज टू बी सम पर्सन हु इज विथड्रॉइंग 5 और 4 का नंबर।
तो एग्जैक्टली 2 तो नहीं, यहाँ पे तो 3 हो जाएंगे, मतलब एक तो 6 वाला हो जाएगा जिसका नाम है मीना, एक हो जाएगा 3 जिसका नाम है राजेश, एक हो जाएगा 4 और 5 में से कोई एक जो कि शायद जो 5वां कैरेक्टर बचा विच इज रामलाल, वो होना चाहिए। तो इससे क्या कंक्लूड करा है कि यार पन्नालाल की सैलरी 7 तो नहीं हो सकती। अच्छा, अगर 7 नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है 7 के अलावा? क्या 6 दे सकते हैं? नहीं, 6 भी नहीं दे सकते। क्या 5 दे सकते हैं? प्रॉब्ली यस, पन्नालाल की सैलरी हम 5 दे सकते हैं। उस केस में किसी दो लोगों की कम होनी चाहिए, यानी देयर हैज टू बी एग्जैक्टली 2%। तो 4 और 3 दोनों एग्जिस्ट करेगा, जिसमें से 3 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और ये दोनों पॉइंट को अगर हम यूज करें, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर ये 5, इन दोनों को रिलेट करो तो तुमको समझ आएगा कि पूजा का ये वाला केस तो कभी बन ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे 7 वाला तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे एक ही, मतलब कोई ऐसा बंदा ही नहीं अपने को मिल रहा है हु इज विथड्रॉइंग 7 वाली सैलरी। उस केस से जो पूजा के लिए ये 3 केसेस बने, यहाँ से 2 केसेस हमारे एलिमिनेट हो गए। तो हमने क्या पूजा कह रहा हूँ, सॉरी, पुष्पा के लिए जो 2 केसेस थे वो एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा? पुष्पा जो कि क्या सैलरी दे रही होगी, वो सैलरी मतलब दे रही होगी 5 की, और जया जो कि सैलरी दे रही होगी 4 की। और किसको दे रही होंगी? पुष्पा ऑब्वियसली किसको देगी? पन्नालाल को देगी, और किसी को नहीं दे सकती। तो पन्नालाल का आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आना चाहिए था रामलाल को। ठीक है, अब इनकी सैलरी के साथ साथ इनका ये भी निकल गया 5000 और 4000, ये हो गया। नो टू सर्वेंट वाला पॉइंट तो हमने पढ़ते समय यूज कर लिया था, किसी के भी देखो किसी का भी इक्वल अमाउंट नहीं है। स्टार एंड राज वैभव आर 2 ऑफ द हाउसिंग 5 हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, तो अब अपने को हाउसिंग सोसाइटी है जो अपने को क्लियर कट नहीं मिल पा रही है, तो स्टार और राज वैभव यहाँ आ सकता है, यहाँ राज वैभव और स्टार यहाँ आ सकता है। सिमिलरली ये जो ये सिद्धि विनायक और शुभ चिंतक है वहीं पे आ सकता है, सिद्धि विनायक और शुभ चिंतक, शुभ चिंतक और सिद्धि विनायक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम पूरा देख लेते हैं क्या चीजें हम ये भी यूनिक निकाल पाएंगे क्या। नो फीमेल वाला पॉइंट यूज हो गया, गोपाल एम्प्लॉयज वाला पॉइंट यूज हो गया, रीना वाला पॉइंट यूज हो गया, मीना जल मंदिर वाला कर लिया था, पुष्पा यूज हो गया था, हाईएस्ट पेड सैलरी वाला हो गया था, पन्नालाल वाला भी यूज कर लिया था, नो टू अदर यूज हो गया है, स्टार एंड ये भी यूज कर लिया है ना। अमंग द क्लाइंट्स ये वाला जेंडर वाला था, ये हमने सबसे पहले यूज करा था। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। मे बी ये जो ये वाली चीजें वो क्वेश्चन में पूछी ही ना गई हो। क्या बोला हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन जया's हाउस? जया के हाउस में कौन काम कर रहा है? रामलाल काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ देख लो रामलाल लिखा हुआ है। अच्छा, इन विच सोसाइटी डज श्यामलाल वर्क? श्यामलाल कहाँ पे काम करता है? श्यामलाल, श्यामलाल क्या स्टार या राज वैभव? इधर स्टार और राज वैभव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाउ मच सैलरी डज पन्नालाल गेट पर मंथ इन रुपीज? पन्नालाल की सैलरी क्या? ये तो 5000 है। आंसर क्या होना चाहिए? 5000। ये यहाँ पे हमने निकाल रखा है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस सैलरी पर मंथ ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन सिद्धि विनायक एंड शुभ चिंतक सोसाइटी? सिद्धि विनायक और शुभ चिंतक यही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला है? 1000 रुपए का। तो इनका आंसर हो गया। ठीक है, अब मॉडरेट सेट और पेपर वाले फेज में अगर ध्यान दो तो सिमकैट में हमेशा एक सेट ऐसा होता ही होता है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दी सेट्स। आप हमेशा क्या कर रहे हो? एक ऐसे सेट पे जाके फंस रहे हो जो कि देखने में छोटा लग रहा है और आप अपना टाइम वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर सिमकैट जो लास्ट बीता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने एंट वाला सेट किया, सेट नंबर 1, और उसमें टाइम खराब किया। वो सेट क्यों किया? सेट छोटा देखने में लग रहा था, शायद डुएबल था। ऐसा नहीं होता है। उससे ज्यादा इजी सेट आपका सेट नंबर 4 वाला था, जहां पे जेंडर के बारे में बात हो रही थी, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अगर आपने वो सेट किया होता तो आपके लिए चीजें आसानी से निकल गई होती। एंड सिमिलरली ये भी सेट ऐसा ही था, मतलब ये जिस पर्टिकुलर सिमकैट में था वहां पे भी यही प्रॉब्लम थी। ये सेट था, इजी था, बट इससे छोटे छोटे 2 सेट और थे, लोगों ने वहां पे टाइम वेस्ट किया और वो पजल थे। तो द रीजन बिहाइंड डूइंग दीस टाइप ऑफ सेट्स कि भाई आपको ये भी पता चले कि यार ऐसे सेट्स रहते हैं। इट्स जस्ट दैट दिमाग को शांत रख के ये भी सेट्स अपने को करने होते हैं। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।